Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 10th. I'm your biology teacher, Mrs. Mumtaz Sultan. Today, we are going to discuss the following topics: a human eye, structure of eye, layers of eye, and their function. Then you will solve the question given at the end. Now we will discuss the human eye in detail. First of all, we will see the location of the eye. Our eyes are located in small portion of the skull known as orbits or sockets. This is the skull bone. All this is skull bone, and our eyes are located in the small portion of the skull known as orbits or sockets. Eyes are also connected with muscles by which eyes show movement. This is a eyeball. Eyeball is spherical in shape, and the outermost layer is white in color. But in front, it is transparent. So, cornea, this is called cornea, which admits the light to the interior of the eye and bends the light rays so that they can be brought to a focus. First of all, we will discuss the external structure of eye. Eyelids. These are eyelids. Here, these are eyelids. You can see the eyelids. Eyelids wipe eyes and prevent dehydration. Dehydration means removal of water. They spread tear on the eye. Eyelids also spread tear on eyes which contain substances. Tears contain substances which fight for against bacterial infections. Now, next external part of the eye is eyelashes. You can see the hairs. These are called eyelashes. Eyelashes prevent fine particles from entering the eye, like dust particles, soil particles. Now we will discuss the internal structure of eye. Internal structure of eye. Eye consists of three main layers: outer layer, middle layer, and inner layer. Outer layer is called sclera, middle layer is called choroid, and innermost layer is called retina. Actual visual perception occur here. Main action of vision occur on retina. Now we will discuss in detail sclera. Outer layer is called sclera. It consists of dense connective tissues. This outer layer, this is white in color, it consists of dense connective tissues. Mean it is made up of hard material. It has poor supply of blood, very poor supply of blood.
क्योंकि इस लेयर को न्यूट्रिएंट्स की ज्यादा जरूरत नहीं होती, इस वजह से जितनी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है ये सराउंडिंग सेल्स से ले लेती है, यानी सेकंड लेयर से भी ये न्यूट्रिएंट्स ले लेती है। इसलिए इसको न्यूट्रिएंट सप्लाई, इस वजह से ब्लड वेसल्स, इसमें ब्लड वेसल्स की सप्लाई बहुत पुअर होती है। द फ्रंट पोर्शन ऑफ द स्क्लेरा बिकम ट्रांसपेरेंट। वैसे तो इसका जो है वाइट होता है, सारा जो लेयर है ये वाइट लेयर है, लेकिन यहाँ पे ये बिकम ट्रांसपेरेंट एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड कॉर्निया। ट्रांसपेरेंट होगा तो उसमें से लाइट पास ऑन होगी, अगर ये ट्रांसपेरेंट ना हुआ तो इसमें से लाइट पास ऑन नहीं हो सकती। In front of the eye, sclera forms the transparent cornea. Cornea admits light to the interior of the eye and bends light rays so that they can be brought to a focus. Middle layer of the eye is called choroid. Middle layer is called choroid. Choroid consists of, this choroid layer is highly vascularized. Next, choroid is highly vascularized and richly supplied with blood vessels. And due to blood vessel, its color is dark, bluish color. And it gives the inner eye a dark color. Dark color prevents disruptive reflection within the eye. Disruptive reflection mean irregular reflection नहीं होने देती, बल्कि रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, एक पॉइंट पे आके सारी रेज जो हैं फोकस होती हैं। इसके बाद ये सी अभी सेकंड लेयर की बात हो रही है। सेकंड लेयर आगे it become thick, muscular. Here it become thick and muscular. This is called ciliary muscles. This is called, and these two are called ciliary muscles. Ciliary muscles have the ability to contract and relax. Ciliary muscles are attached with the lens through suspensory ligaments. सेकेंड पार्ट हो गया सेलरी मसल्स। फर्स्ट क्या था, ये कोराइड लेयर है, ये हाईली वेस्कुलराइज्ड है, डार्क इन कलर है, और आई को जो है कौन सा वाला डिसरप्टिव रिफ्लेक्शन नहीं होने देती, बल्कि सारी रेस को एक पॉइंट पे फोकस करती है, इसकी वजह से सारी रेस लाइट रेस। और उसके बाद ये नेक्स्ट इसका ये जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड सेलरी मसल्स। सेलरी मसल्स जो हैं ये लेंस को सस्पेंड करते हैं थ्रू सस्पेंसरी लिगामेंट्स। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कोराइड इज called iris. This is a ring of muscles, and iris में पिगमेंट्स होते हैं। हर पर्सन में पिगमेंट्स का कलर डिफरेंट होता है। डिफरेंट आई कलर्स डिफरेंट पिगमेंट्स की वजह से होते हैं। कुछ लोगों के आई कलर ब्लैक होता है, कुछ का ब्राउनिश होता है, कुछ का ब्लू होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स इन द आइरिस। आई कलर सब लोगों का डिफरेंट होता है। इसके बाद ये लेंस जो है, एक तो कॉर्निया में प्रॉब्लम की वजह से ब्लाइंडनेस होती है, दूसरा जो लेंस है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इट बिकम थिक, और थिक होने की वजह से
ये ट्रांसपेरेंट नहीं रहता बल्कि ओपेक हो जाता है और इसमें से लाइट पास ऑन नहीं हो सकती, इसलिए इसको रिप्लेस कर दिया जाता है विद आर्टिफिशियल लेंस। इस थिकनेस की वजह से ये ओपेक हो जाता है, तो इस डिजीज को कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट। आपने कोराइड की 3 पार्ट्स पढ़े, हाईली वस्कुलराइज्ड यानी रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, सेकंड सैलरी मसल्स एंड थर्ड पार्ट आपने पढ़ा आयरस। इसके बाद आयरस के ये रिंग है और इस रिंग के सेंटर में प्यूपिल है। दिस इज अ होल इन द सेंटर ऑफ द आयरस। Pupil is the hole in the center of the iris. After striking the cornea, light passes through this pupil. After strike, light strike करती है कॉर्निया से, क्योंकि कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है तो लाइट फिर पास होती है थ्रू दिस होल। नेक्स्ट, अब इसको देख लेते हैं। ये सर्कुलर रिंग मैंने बताया था, ये आयरस है और ये सर्कुलर रिंग होती है और इसके सेंटर में क्या है, प्यूपिल। अब आयरस जो है ये मस्कुलर है, मसल से बना हुआ है। इसमें 2 टाइप्स के मसल्स हैं। दीज मसल्स आर कॉल्ड रेडियल मसल्स एंड दीज आर कॉल्ड सर्कुलर मसल्स। व्हेन लाइट इंटेंसिटी डिक्रीजेस, लाइट बहुत कम है तो फिर नजर आना बंद हो जाता है। तो क्या होता है कि ये जो इसका प्यूपल का साइज है ये बड़ा हो जाता है ताकि लाइट जो है ज्यादा से ज्यादा पास हो। इसमें क्या होता है कि सर्कुलर मसल्स रिलैक्स हुए और रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, तो इसका साइज बड़ा हो गया। इन दिस केस व्हेन लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेस, बहुत ज्यादा लाइट इंटेंसिटी होने की वजह से टू मच लाइट बीइंग लेट इन फुड, अगर लाइट ज्यादा लाइट चली जाए तो वो डैमेज कर सकती है रेटिना के जो सेल्स हैं उसको डैमेज कर सकती है। इसलिए इसका साइज नेचर की तरफ से खुद ही ये छोटा हो जाता है। होता है इसमें क्या है कि रेडियल मसल्स रिलैक्स होते हैं और सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इसकी वजह से इसका साइज छोटा हो जाता है। यहाँ पे सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए तो प्यूपल का साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। यहाँ पे रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए तो प्यूपल का साइज बड़ा हो गया। और इसमें क्यों बड़ा हो जाता है, ताकि मैक्सिमम लाइट पास ऑन हो और हमें अंधेरे में नजर आए। और इसमें छोटा क्यों हो जाता है, क्योंकि ज्यादा लाइट जो है, ज्यादा लाइट इंटेंसिटी रेटिना के जो सेल्स हैं, रेटिना वेरी सेंसिटिव लेयर ऑफ द आई, उसके सेल्स को डैमेज कर सकता है। When light pass through the pupil, अब हम देखते हैं अगर लाइट कम हो तो इसका साइज क्या होगा और अगर लाइट ज्यादा हो तो इसका साइज क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर लाइट कम है तो इसका साइज प्यूपल का बड़ा हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसके बाद जो आयरस और प्यूपल है, इनकी वर्किंग सेम है एज दैट ऑफ द कैमरा। द वर्किंग ऑफ आयरस एंड प्यूपल इज सेम एज दैट ऑफ द कैमरा। नेक्स्ट, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सैलरी मसल्स हैं और सैलरी मसल्स आर अटैच विद लेंस थ्रू सस्पेंसरी लिगामेंट्स। नेक्स्ट, अब शेप देखते हैं कि इसकी शेप में जब these salary muscles, when these salary muscles contract, when these salary muscles contract, one,
Behind the iris, there is a convex lens. Behind the lens, there is a convex lens which focus light on the retina. Lens is attached to the ciliary muscles of the eye via a ring of suspensory ligaments. To see clearly an object far away, ciliary muscles relaxed. Ciliary muscles, to see the things far away, ciliary muscles contract. And lens become more convex. Ciliary muscles, when ciliary muscles relax, when ciliary muscles contract, lens become more convex and round. When ciliary muscle relax, lens become convex and less convex. Ciliary muscle relax, lens become less convex. When ciliary muscles contract, lens become more rounded and more convex. Now we will discuss the innermost layer, that is the retina, which is very important for the main action of vision which occur on retina. And the innermost layer, this layer is very sensory and sensitive layer, and this layer is called retina. This is sensory layer, this is very sensitive layer, and this is called retina. It contains, अगर यहाँ पे रेटिना में कोई डिफेक्ट हो जाए, ब्लाइंडनेस रेटिना की पे किसी डिफेक्ट की वजह से ब्लाइंडनेस होती है, तो उसको उसका कोई क्योर या इलाज या ट्रीटमेंट नहीं है. तो वो, and it contains the photosensitive cells. Here, this is the third layer, and it is also supplied with blood vessels, and it contains photosensitive cells. These photosensitive cells are rods and cones. रॉड से याद रखें, जैसे रात को जो है रॉड से नजर आता है, रॉड की वजह से. और कोन्स में सी को याद रखें, कलर. तो रॉड्स एंड कोन्स आर एसोसिएटेड विथ, ये दोनों रॉड्स और कोन किसके साथ एसोसिएटेड हैं? विथ न्यूरॉन्स. रॉड्स आर सेंसिटिव फॉर डिम लाइट and cones are sensitive to bright light. So, cones distinguish different colors. Retina has 2 points. Fovea, this point is called fovea, and this point is called optic disc, या blind spot. Fovea is a dip on retina directly opposite to the lens, and is densely packed with cone cells. यहाँ पे बहुत ज्यादा cone cells होते हैं. It is largely, these cone cells are responsible for color vision and secondly sharpness. ये सही clear image बनाता है ये fovea due to the presence of cones. और इसका जो मैकेनिज्म है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. और सेकंड है optic disc is a point on retina where the optic nerve enters the retina. There are no rods and cone at this point. इस पॉइंट पे जहां से ऑप्टिक नर्व रेटिना में इंटर होती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ब्लड सप्लाई भी यहाँ से ही इंटर होती है, और इसका जो ड्रेनेज है वो भी इसी पॉइंट से होता है. तो इस पॉइंट का बस यही फंक्शन है
तो ये पॉइंट, ये यहाँ पे रॉड्स और कोन्स नहीं है, यानी ये पॉइंट विजन के साथ रिलेटेड नहीं है। विजन का प्रोसेस फोविया पे होता है, और यहाँ पे जो है रॉड्स एंड कोन एब्सेंट है, क्योंकि यहाँ से ऑप्टिक नर्व इंटर हो रही है, और इसका यही फंक्शन है कि ये मैसेजेस को लेके ब्रेन में जाए और वहां पे जो रियल जो इमेज है वो बने। दैट इज वाई इट इज आल्सो कॉल्ड, और इसको क्योंकि यहाँ पे रॉड्स और कोन्स नहीं है, दैट इज वाई इट इज आल्सो कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। तो हम इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं कि कितनी लेयर्स है हमने पढ़ी। देयर आर 3 लेयर्स ऑफ आई। फर्स्ट इज स्क्लेरा, सेकंड इज कोराइड, एंड थर्ड इज रेटिना। ये स्क्लेरा और कोराइड का जो फंक्शन है, स्क्लेरा का फंक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ द आई, और कोराइड, और इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ द आई एंड इट आल्सो गिव शेप टू द आई। और कोराइड का फंक्शन है सप्लाई ऑफ फूड। तो ये दोनों ये काम करते हैं, लेकिन इनका विजन के साथ इतना और भी इनके काम हैं, और भी इनके फंक्शंस हैं, लेकिन विजन के साथ इनका कोई वो नहीं है, फंक्शन है। मेन फंक्शन जो विजन के साथ है वो रेटिना का है, क्योंकि रेटिना में फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं। दीज आर रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स रात को देखने में के लिए यूज होते हैं डिम लाइट में, और कोन्स जो हैं वो ब्राइट लाइट में देखने के लिए, डिफरेंट कलर्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है। और स्क्लेरा के आपने पढ़ा कि स्क्लेरा व्हाइट इन कलर होता है, लेकिन ये आगे जो है जाके ट्रांसपेरेंट हो जाता है जहां से लाइट पास ऑन होती है। इसके बाद आपने सेकंड लेयर पढ़ा, इसके 3 पार्ट्स पढ़े क्लोराइड के। एक तो ये रिचली स्प्लाइड है और थिन लेयर है यहाँ पे, यहाँ से, और फिर आगे जाके ये थिक हो जाती है, मस्कुलर हो जाती है, तो इसको क्या कहते हैं, सैलरी मसल्स। और नेक्स्ट जो है ये इट फॉर्म्स अ रिंग ऑफ मसल्स कॉल्ड आइरस। और आइरस में डिफरेंट पिगमेंट्स होने की वजह से डिफरेंट जो लोग हैं उनका आई कलर डिफरेंट होता है। इसके बाद ये 3 मेन पार्ट्स अपने रेटिना है, और रेटिना में फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं। इसके अलावा इसमें 2 पॉइंट्स आपने पढ़े, एक है फोविया जहाँ पे कोन जो हैं वो डेंसली पैक्ड हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे कोन्स हैं, ताकि जो इमेज है वो शार्प इमेज बने, क्लियर इमेज बने। और इसके अलावा जो है यहाँ पे ब्लाइंड है, क्योंकि यहाँ पे कोन्स और रॉड्स नहीं है, लेकिन ऑप्टिक नर्व जो है यहाँ से इंटर हो रही है, जो कि मैसेज लेके जाएगी ब्रेन में। हम इस को हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ विजन को इन द नेक्स्ट लेक्चर। दिस इज द असाइनमेंट। आपने ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपने इसमें बताना है व्हाट इज कॉर्निया। सेकंड क्वेश्चन में आपने बताना है व्हाट इज आइरस, और इसका फिर आप फंक्शन बता देंगे, इस आइरस का क्या फंक्शन है। इसके बाद आपने थर्ड क्वेश्चन में बताना है हाउ डज साइज ऑफ प्यूपिल इन अ ह्यूमन आई। मैंने आपको बहुत क्लियर बताया कि कैसे वेरी करता है विद द लाइट इंटेंसिटी, यानी लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो प्यूपल के साइज में क्या डिफरेंस आएगा। इसके बाद आपने बताना है व्हाट चेंजेस अकर इन द शेप ऑफ लेंस टू सी, यानी अगर आपने फार ऑब्जेक्ट्स हैं उसको देखना है तो आप जो उसका लेंस का जो लेंस है वैसे तो कन्वेक्स है, लेकिन लेंस की लेंथ क्या हो जाएगा, इलोंगेटेड हो जाएगा और लेस कन्वेक्स हो जाएगा। ये लेंस जो है ना बाय कन्वेक्स है, तो ये लेस कन्वेक्स हो जाएगा, और ताकि हमें दूर की चीज जो है वो क्लियर नजर आए। तो ये आपने इसमें बताना है कि वो जो सैलरी मसल्स हैं वो क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं, और सैलरी मसल जब रिलैक्स करते हैं तो लिगामेंट्स जो हैं वो इसको क्या करेगा, पुल करेगा लेंस को, और लेंस इलोंगेटेड हो जाएगा और लेस कन्वेक्स हो जाएगा। इसके बाद वाई आउल इज नॉट एबल टू सी ड्यूरिंग, मैंने आपको बताया है रॉड्स और कोन्स के बारे में बताया था कि रॉड्स जो हैं वो डिम लाइट में या रात को देखने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो आपने बताना है वाई, तो इसका मतलब है कि जो ब्राइट लाइट में देखने के लिए कोन्स यूज होते हैं, तो ये आउल में कोन्स नहीं होंगे, इसी वजह से ये जो है ड्यूरिंग डे टाइम ये नहीं देख सकता।